وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو 417 ارب روپے انسداد دہشت گردی کی مد میں دیے گئے، خدا جانے وہ کہاں خرچ کیے گئے، کوئی نہیں جانتا، ان کا حساب دیا جائے کہ وہ کہاں گئے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پشاور دھماکہ افسوسناک ہے، دہشت گردوں کے خلاف قوم اور ادارے متحد اور ایک آواز ہیں، بہادر اور غیور عوام کی ہمت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، جبکہ پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور سینکڑوں اہلکاروں نے رہائش گاہ کو حصار میں لیے رکھا، جبکہ پولیس کی کچھ گاڑیاں رہائش گاہ کے قریب بھی گشت کرتی رہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ حکومت ہمیں پکڑنے کی بجائے دہشت گردوں کو پکڑے۔ نگران حکومت اپنا مینڈیٹ بھول گئی ہے، ان کا مینڈیٹ صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کسی کے گھر پر ریڈ نہیں کر رہی، وہ اپنے مخالفین کی دل آزاری نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے ان کے خلاف کس طرح سارا گجرات باہر نکلتا ہے۔ حکومت ہمیں پکڑنے کی بجائے دہشت گردوں کو پکڑے، یہ یہاں اپنی دشمنیاں نکالنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے تھانہ اپارہ طلبی کے نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے تھانہ اپارہ طلبی کے نوٹس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ رات کے وقت انہوں نے ہماری ذاتی ملکیت پر قبضہ کیا، اگر یہ ہماری ذاتی ملکیت نہ ہو تو ہمیں چوک میں لٹکا دیا جائے۔ انہوں نے 16 وزارتوں کی انویسٹیگیشن کی ہے، انہیں 16 وزارتوں میں سے کچھ نہیں ملا۔ صبح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے مبینہ خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 101 ہو گئی، جبکہ 216 افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایلرین واٹسن نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ پشاور میں ایک مسجد پر ہونے والے خودکش بم حملے کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تھانہ مکڑوال میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو شاباش دی اور غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسران جوانوں کو انعام اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو مار بھگانے والے پنجاب پولیس کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پولیس سے دہشت گردی اور جرائم کے خاتمے میں ہمارا قابل فخر ہر اول دستہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریسٹورنٹس رات 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دے دی۔ جسٹس شاہد کریم نے سمو کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق ہوم ڈلیوری کی سروس رات 12:30 بجے تک دینے کی اجازت دی گئی ہے۔
महकमा मौसमियात का मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया। शुमाली बलूचिस्तान और बलाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में मुस्तकिल कमी। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3797 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 19 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.50% रही। कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस की जानिब से मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया है, जबकि पुलिस की दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों एहलकारों ने रिहाइश गाह को हसार में लिए रखा। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस की जानिब से गुजरात में चौधरी परवेज इलाही के रिहाइश गाह कंजहाड़ी हाउस पर छापा मारा गया और भारी नफरी ने रिहाइश गाह को हसार में लिए रखा, जबकि पुलिस की कुछ गाड़ियां रिहाइश गाह के करीब भी गश्त करती रहीं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही घर पर नहीं बल्कि लाहौर में मौजूद हैं। सिर्फ घरेलू मुलाजमीन घर पर मौजूद हैं। ये भी नहीं बताया जा रहा कि पुलिस ने किस मुकदमे में और क्यों छापा मारा है। 28 जनवरी को पुलिस ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के ड्राइवर और गनमैन को शराब की बोतलें ले जाते हुए गिरफ्तार किया, जिस पर उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया था। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हुकूमत हमें पकड़ने की बजाय दहशत गर्दों को पकड़ी। निगरान हुकूमत अपना मैनिडेट भूल गई है। उनका मैनिडेट साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना है। अपने एक बयान में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी के घर पर रेड नहीं कर रही, वो अपने मुखालिफिन की दिल आजारी नहीं करती। आप देखेंगे कि उनके खिलाफ किस तरह सारा गुजरात बाहर निकलता है। ये यहाँ अपनी दुश्मनियां निकालने के लिए मौजूद नहीं है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये समझते हैं कि इनको सुरखाब के पर लग गए हैं और ये पकड़े नहीं जाएंगे। उनका भी हिसाब बहुत जल्द होगा। ये काम ही सारा गलत कर रहे हैं। हमें अपनी अदलिया पर पूरा यकीन है, उनको अदालतों से सजा दिलवाएंगे। ये गैर कानूनी हरकतें कर रहे हैं। हम तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। सारी वकला तंजीमें भी हमारे साथ खड़ी हैं। ये जो लोगों को तंग करते हैं, अब बारी उनकी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उनको इलेक्शन में अपनी मौत नजर आ रही है। हमारे मुलाजमीन को धमकियां देते रहे और तलाशियां लेते रहे हैं। जो इनको चलाने वाले हुक्मरान हैं, अब उनकी बारी है। ये छापा इसलिए मार रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन ना लड़ें। हम लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। उनका मजीद कहना था कि हम कोर्ट में जाएंगे तो फिर इनका दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमें छापे से पहले कुछ नहीं बताया गया। हम इनको कटहरे में लाएंगे। इनके खिलाफ कानूनी अदालती कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि परवेज इलाही के घर छापा चौधरी वजाहत हुसैन की गिरफ्तारी के लिए मारा गया था। वजाहत हुसैन घर पर मौजूद न होने के बायस पुलिस तलाशी के बाद वापस लौट गई। पुलिस जराये के मुताबिक थाना कुकराली में पुलिस की मदयत में मुकदमा दर्ज किया गया था। कोटला अस्पताल झगड़े में चौधरी वजाहत के बेटे मूसा इलाही भी मौके पर मौजूद थे। मूसा इलाही को कोटला सिविल अस्पताल में फायरिंग के मामले पर दौरान तफ्तीश मुकदमे में नामजद किया गया था। पुलिस जराये का कहना है कि मूसा इलाही ने मुकदमे में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। चौधरी वजाहत ने ताहाल मुकदमे में जमानत नहीं करवाई। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के भाई और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के चचाजाद भाई हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुबैना बेटी टेरियान को जाहिर न करने पर नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जज एक बार केस सुनने से इनकार कर दे तो दोबारा सुनना गैर मुनासिब है। साबिक वज़ीर आज़म ने तहरीरी जवाब में जस्टिस आमिर फारूक पर इतराज़ उठाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाअहली की दरख्वास्त नाकाबिल समात है। इमरान खान रुकन असम्बली नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट टेरियान से मुतल्लिक डिक्लेरेशन का जायजा आईनी दायरा इख्तियार में नहीं ले सकती। दरख्वास्त के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक माजी में भी इमरान खान के खिलाफ इस नवैयत का केस सुनने से इनकार कर चुकी हैं। ये मुसलमा असूल है कि एक बार जज केस सुनने से इनकार कर दे तो जज दोबारा वो केस सुने तो गैर मुनासिब है। नाअहली की दरख्वास्त खारिज की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए इंसदाद दहशतगर्दी कीमत में दिए गए। खुदा जाने वो कहां खर्च किए गए, कोई नहीं जानता। उनका हिसाब दिया जाए कि वो कहां गए। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पेशावर धमाका अफसोसनाक है। दहशतगर्दों के खिलाफ कौम और इदारे मुत्तहिद और एक आवाज़ हैं। बहादुर और गयूर अवाम की हिम्मत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल PTI की हुकूमत रही। इन 10 सालों में वफाक की जानिब से 417 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा को अदा किए जा चुके हैं। 417 अरब रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए? कहा जाता है कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन इन्हें सालाना 40 अरब रुपए मिले। वो पैसे कहाँ गए? वज़ीर आज़म का कहना था कि ये पैसा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था। खैबर पख्तूनख्वा को सालाना 40 अरब रुपए मिले, किसी और सूबे को इतने पैसे नहीं मिले। अब PTI का गिला हकाइक को मसख करने की कोशिश है। पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि हमारे पास वसाइल थे तो नेक्टा बनाया गया, CTD बनाई गई, फिर भी पैसा कहाँ खर्च हुआ। KPK के सियासी खानदानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी का ये नासूर दोबारा सर उठा रहा है। सवाल पैदा होता है कि इनको कौन वापस लेकर आया? दोबारा पाकिस्तान का अमन खराब हुआ किस तरह? KPK में दहशतगर्दी के हाथ में चला गया है। अगर हमने फौरी इकदाम ना किए तो ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा। हम इस पर दोबारा काबू पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने पेशावर मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके के हवाले से रिमार्क्स देते हुए कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे? कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? फासिल जज ने कहा कि आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को वो 5 मार देंगे। पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि लंबी दाढ़ी रखने से बंदा मुसलमान या अच्छा इंसान नहीं बन जाता। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह ही नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने थाना अपारा तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रात के वक्त उन्होंने हमारी जाती मलकियत पर कब्जा किया। अगर ये हमारी जाती मलकियत ना हो तो हमें चौक में लटका दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि 16 वजारतों की इन्वेस्टिगेशन की गई, इन्हें 16 वजारतों में से कुछ नहीं मिला। शेख रशीद ने कहा कि इस मुल्क को बहरान में दाखिल करने की साजिश की गई। घर घर में एक कयामत का पहलू है। लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं, IMF वाले आए हुए हैं। हमारा मुतालबा है IMF की शराइत को ओपन किया जाए। उनका कहना था कि हम ओवरसीज के वोटों के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, ओवरसीज को उनके हक मिलेगा। हम निगरान वज़ीर आला के खिलाफ भी अदालत में गए। पंजाब में 1 या 2 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी गई, ये आईनी हक है। 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख आ गई है। अच्छी बात है, पंजाब में भी इलेक्शन की तारीख दी जाए।
IMF کے مطالبے پر پاکستان نے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے مذاکرات ہوئے، جن کے دوران IMF نے بجلی اور گیس سیکٹر میں 4100 ارب روپے کا گردشی قرضہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF کے مطالبے کے مطابق بجلی کی قیمت میں مارچ تک 3 روپے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا۔ مئی تک بجلی کی قیمت میں مزید 70 پیسے فی یونٹ بڑھائی جائے گی۔ وزارت خزانہ کی ذرائع کا کہنا ہے کہ اگست تک مجموعی طور پر بجلی کی قیمت میں 6 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا مزید کہنا ہے کہ بجلی کے ٹیرف میں 7.5 سے 10 روپے یونٹ تک اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کی ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے 100 یونٹ کی بجائے 300 یونٹ تک سبسڈی کی تجویز دی گئی ہے۔ پاکستان اور IMF توانائی کے شعبے سے متعلق اتفاق رائے کے لیے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ریسٹورانٹ رات 11 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے سموک کیس میں گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق ہوم ڈیلیوری کی سروس رات 12:30 بجے تک دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ عدالت نے ٹریفک پولیس کو سڑکوں پر ٹریفک کی معلومات کے لیے ٹیلی فون نمبر دینے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تھانہ مکڑوال میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو شاباش دی اور غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسران جوانوں کو انعام اور تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو مار بھگانے والے پنجاب پولیس کے افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پولیس سے دہشت گردی اور جرائم کے خاتمے میں ہمارا قابل فخر ہر اول دستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم اور ادارے متحد اور ایک آواز ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے خاتمے میں پنجاب پولیس اور CTD کا کردار اور جذبہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پولیس اور CTD کو مزید مضبوط اور جدید ہتھیاروں سے لیس کریں گے۔ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی بہادر فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں ہونے والے مبینہ خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 101 ہو گئی، جبکہ 216 افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امن دشمنوں نے پشاور کے انتہائی حساس علاقے پولیس لائنز کی مسجد میں پیر کے روز عین اس وقت دھماکہ کیا جب وہاں نماز ظہر ادا کی جا رہی تھی۔ خوفناک دھماکے سے مسجد کی چھت اور اندرونی حال منہدم ہو گیا، بیشتر نمازی ملبے تلے دب گئے۔ ملک کا کینٹین کی عمارت بھی تباہ ہو گئی، جبکہ ہر طرف افراتفری پھیل چکی تھی۔ دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ آواز دور دور تک سنی گئی۔ دھماکے کے فوری بعد پولیس، سیکیورٹی، ریسکیو اداروں کے اہلکار موقع پر پہنچے اور شہداء اور زخمیوں کو نکال کر لیڈی ریننگ ہسپتال منتقل کیا، جبکہ پشاور کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کی وجہ سے احتساب عدالتوں سے ختم ہونے والے نیب کیسز کا ریکارڈ طلب کرا لیا۔ کرپشن کیس میں ملزم کی ضمانت منسوخی کی نیب درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ نیب ترامیم کے بعد کون کون سے مقدمات متعلقہ فورم پر بھیجے گئے، ریکارڈ پیش کریں۔ دوران سماعت جاری مقدمے سے متعلق نیب نے بیان دیا کہ کوئٹہ کا کرپشن کیس نیب دائرہ اختیار سے نکل گیا ہے، درخواست غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ نیب ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہے، ابھی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ نیب ان مقدمات کے ساتھ کیا کر رہا ہے جو ترامیم کی وجہ سے احتساب عدالتوں سے واپس آ رہے ہیں۔ نیب نے کہا کہ احتساب عدالتوں سے واپس آنے والے مقدمات کے لیے نظر ثانی کمیٹی قائم ہے جو کیسز متعلقہ فورم پر بھیج رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا کہ کون کون سے نئے مقدمات دوسرے فورم پر بھیجیں گے، پچھلے 6 ماہ کا ریکارڈ دیا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
वेलकम बैक। एनएफ का मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई। बैरून मुल्क कैप्सूल के जरिए मुनशियात स्मगलिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बैरून मुल्क कैप्सूल के जरिए मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई। फ्लाइट नंबर PA210 से दुबई जाने वाले मुलजिम के पेट से 80 हेरोइन बड़े कैप्सूल बरामद करके शुमाली वजीरिस्तान का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि फ्लाइट नंबर PK287 से दोहा जाने वाले मुलजिम के पेट से 52 चर्स भरे और 31 आइस भरे कैप्सूल बरामद करके मर्दान का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के करीब इस्लामाबाद के रिहायशी मुलजिम से 510 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम बरामदा चर्स से तलबा को फरोख्त करता था। NF और ASF की बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिशावर पर मुश्तरका कार्रवाई के दौरान फ्लाइट नंबर G9 555 से शारजा जाने वाले मुलजिम से 70 ग्राम चर्स बरामद कर लिए गए। बरामद शुदा चर्च को रबाब में छुपाया गया था। लाहौर एम्प्रेस रोड पर वाक़ निजी कोरियर ऑफिस में नॉर्वे से भेजे गए पार्सल में से 31 ग्राम वेड बरामद कर ली गई है। बरामद शुदा वेड टाफियों के पैकेट में छुपाई गई थी। तर्जमान NF के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद की ज़ेर-ए-सदारत कमेटी रूम में इजलास हुआ। इजलास में मुतल्लिका अफसरान की जानिब से SMBR को महकमा बारे तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास में बोर्ड मेंबरान, सेक्रेटरीज बोर्ड, PDMA, कच्ची आबादी, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अफसरान ने शिरकत की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया कि रेवेन्यू इस्लाहात बारे तरजीही बुनियादों पर काम किया जाएगा। तमाम अजला के अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। SMBR का कहना था कि सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। शहरियों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। रेवेन्यू टारगेट को मुकम्मल करना अहम तरीन जिम्मेदारी है। डिजिटल गिरदारियों के अमल को बर वक्त यकीनी बनाया जाए। नंबरदारी निज़ाम को मुकम्मल फ़ाल किया जाएगा। रेवेन्यू अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस को जल्द निपटाने के लिए तमाम मेंबरान अपना किरदार अदा करें। कम मुद्दत में मेरिट पर फैसले किए जाएं। रेवेन्यू खिदमत कचहरियों में शहरियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। उनका मजीद कहना था कि जारी तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। तरक्याती स्कीमों के खुद दौरे करके जायजा लूंगा। सरकारी इदारे अवाम की सहूलत और आसानी के लिए होते हैं। अफसरान अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएं। पंजाब भर में कच्ची आबादियों का मास्टर प्लान तश्कील दिया जाए। कच्ची आबादियों को डेवलप करने के इकदाम किए जाएंगे। DG कच्ची आबादी को हिदायत, कारपोरेट फार्मिंग वक्त की अहम ज़रूरत है। सरकारी ज़मीन कारपोरेट फार्मिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। कुदरती आफात से निपटने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा रेवेन्यू के ज़ेर एहतमाम असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर की ज़ेर निगरानी लैंड रिकॉर्ड ऑफिस शोरकोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमे के तमाम अफसरान और अमला एक ही छत के नीचे अवाम के मसाइल को सुना जा रहा है, ताकि अवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर ताहिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ महकमा लैंड रिकॉर्ड शोरकोट में। आपको बताता चलूँ कि आज यहाँ पर महकमा सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम, महकमा रेवेन्यू के ज़ेर एहतमाम जो अवामी खदमत सर्विसेज के खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, और यहाँ पर तमाम साइलिन भी मौजूद है और यहाँ पर तमाम स्टाफ रेवेन्यू का, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ कमिश्नर गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं, आप उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आज खुली कचहरी है और यहाँ पर आपके तमाम स्टाफ भी मौजूद है, क्या मसाइल सुने जा रहे हैं, अभी तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रूटीन मैटर है हमारा। हर महीने के जो पहले 2 रोज़ होते हैं, 2 अयाम होते हैं, उनमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हदायत के ऊपर हम एक ही छत के नीचे तमाम हमारा रेवेन्यू स्टाफ मौजूद होता है, जिसमें तहसीलदार है, पटवारी है, गिरदावर है। इसका जो बुनियादी मकसद ये है कि वो काम जो रूटीन में एक आध दिन में हो सकते हैं कि वो टाइमली हो जाए, क्योंकि रूटीन में ये होता है कि पटवारी या AC साहब या तहसीलदार किसी न किसी फील्ड वर्क में या कोर्ट में मसरूफ़ होता है। तो ये 2 दिन हम लोग तमाम बाउंड होते हैं कि हम एक जगह मौजूद होंगे, ताकि जो काम लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, लाइक इनकम सर्टिफिकेट है, लाइक इंतकाल की तस्दीक है, रिकॉर्ड का मुलाजा होना है, वो कर दिए जाए। यहाँ तक सवाल पब्लिक के आने का, तो पब्लिक की काफ़ी कसीर तादाद आ जाती है और जो वन विंडो वाले काम होते हैं, जो मुमकिन होते हैं ऑन द स्पॉट, वो हम उनके कर देते हैं। सर बताइएगा, जिस तरह आप वन विंडो का काम करते हैं, कुछ ऐसे काम भी आ जाते हैं जिनको पिछले खुली कचहरी में आए थे, आज फिर वो है, 1 महीने के अंदर भी नहीं हुए, उनकी क्या वजूहत होती है?
एक्चुअली बेसिकली जो इस तरह के काम होते हैं उसमें कुछ लीगल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक यहाँ पे एक बाबा जी वो तकरीबन हर दफ़ा ही आते हैं, उनका नाम इलमदीन है। उनका एक्चुअली बाउंड्री का मसला है पीर मल के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड गुमशुदा होता है, मसावियान नहीं होती या खसरा गिरदावरी में प्रॉब्लम होते हैं, तो वो ऐसे मैटर जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं तो वो डिले का शिकार होते हैं। हम उनकी मुतलका अदारों तक रिपोर्ट तो करते हैं लेकिन वो वहाँ पेंडिंग होता है। हम उनको समझाते भी हैं, बताते भी हैं कि आपका कोर्ट मैटर है या आपका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पॉलिसी मैटर है वो हो नहीं सकता एक वन विंडो के तहत, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनको जितना कर सके हम उनको अकोमोडेट करें। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर वन विंडो के तहत जितने भी काम होते हैं उनको फिल फॉर हल कर दिया जाता है। अगर कोई काम ऐसे आ जाते हैं जिनके दूसरी जगह पर रिपोर्ट आनी होती है वो डिले भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी काम हो रहा होता है। असल मकसद यही होता है कि आवाम को बेहतर से बेहतर जो रेवेन्यू की खिदमात है वो जो उनको एक जगह पर पेश की जाए। कोटरी साइट एरिया मुस्लिम टाउन का रोड खस्ताहाली का शिकार, ठेकेदार के अदम दिलचस्पी के बायस रोड टूट फूट का शिकार हो चुका है। नेशनल हाईवे से लिंक रोड निकलने वाला पुल ठेकेदार ने हाथों से तोड़ दिया, जिसके बाद आने वाले गाड़ियों को बड़ी तकलीफात का सामना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कमरदीन समू से। जी कमर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? हम एक साथ मौजूद हैं कोटरी में मुस्लिम टाउन के मसरूफियात रोड पर, जहां पर पुल टूटने की वजह से गाड़ियों को बहुत तकलीफ हो रही है। यह मसरूफ टाउन रोड है। मजीद जानते हैं पाकिस्तान नौजवान तहरीक के रहनुमा सत्ता अलर्ट। जी, ऐ चांद यहाँ न निकला कर ये देश से अंधे लोगों का। अफसोस की बात है कि चंद कदम आगे हमारा डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, चंद कदम आगे एससी ऑफिस है, बराबर में कोर्ट है। उसके बावजूद भी हमारे जो इदारे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर जामशरो, असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी जामशरो, इनको ये टूटी हुई पुल नजर नहीं आ रही। ये पुल एक जो नाअहल ठेकेदार है उसने तोड़वाई है, और रोड भी 1.5 साल से नहीं बना, 2 साल से रोड भी वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, और इस पुल को भी तोड़ दिया गया है। अब इस पुल के टूटने की वजह से आए रोज यहाँ पर न जाने कितनी एक्सीडेंटें होती हैं, न जाने कितनी फैमिलियां मोटरसाइकिलों पे उनके टायर फिसल के वो गिर जाते हैं, किसी हाथ टूट जाते हैं, कोई जख्मी हो जाते हैं, और यहाँ पे घंटों घंटों रश हो जाती है गाड़ियाँ, क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा बचा है, उसको भी किसी भी वक्त में टूटने का खतरा है। लेकिन हमारा जो आला जो अहकाम है, जो हमारे इदारे, वो इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रहे। अब मुतालब अपील करते हैं हाई कोर्ट सिंध से कि खुदारा आप इस चीज़ का नोटिस लें और इस पुल को बनाने का आप अधिकृत नोटिस लेकर आर्डर जारी करें, ताकि ये पुल और रोड बना के आवाम को सहूलत दी जाए। जी, अब्दुल सत्ता अलर्ट ने मीडिया आगे बढ़े और आपको बताएंगे सीसीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी की चौंतरा और चक्री के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। सीसीपीओ ने कहा कि चौंतरा और चक्री के इलाकों में 17 सर्च ऑपरेशन किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 350 मुकदमा दर्ज करके 730 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। सर्च ऑपरेशन कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट पर किए जा रहे हैं। मुलजिमान से 181 कलाशनकोफ, 76 राइफल, 59 पिस्टल, 1 MLG, 3 दीगर राइफल समेत 2300 से जायद गोलियां बरामद कर ली गई। कब्जा माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ 350 मुकदमा दर्ज किए गए। बिलू वार्ड सिटी के खिलाफ 206 मुकदमात, अब्दुल्ला सिटी के खिलाफ 39 मुकदमात, कैपिटल स्मार्ट सिटी के खिलाफ 56 मुकदमात और मल्टी गार्डन सिटी के खिलाफ 49 मुकदमा दर्ज किए गए। हाउसिंग सोसाइटीज में असलहे की मौजूदगी और खतरनाक अफराद की मौजूदगी एक चैलेंज है। दर्ज मुकदमात में कत्ल के 11 मुकदमात, दहशत गर्दी के 9 मुकदमात, इक़दाम कत्ल के 18 मुकदमात, अगवा के 4 मुकदमात, हवाई फायरिंग के 14 मुकदमात, पुलिस पार्टी पर हमले के 4 मुकदमात, नाजायज असलहे के 266 मुकदमात और दीगर 24 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। सीसीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने मजीद कहा कि कब्जा माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ मेरिट को यकीनी बनाते हुए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। कराची में खासकर खवातीन के लिए पिंक बसों का सिंध हुकूमत ने आगाज कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। जी अनवर, पिंक बसों के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बसों का सर्विस का आगाज कर दिया गया है। आज खास करके खवातीन के लिए पिंक बस का सर्विस का आगाज किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेरियर हाल में। इसमें पिंक बस टोटल 8 बसें हैं जो मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलेंगे। इसमें खास करके ये बस खवातीन के लिए है
जो खवातीन अक्सर घर से निकलती हैं काम करने के लिए या घूमने के लिए, ये बस खास करके उनके लिए अलग अलग वृंदावन आपको दिखाएगा। आप देख सकते हो इस बस के अंदर मुख्तलिफ सहूलियात है जो खवातीन के लिए मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रूट्स पे मुख्तलिफ बसें जो है ना वो चल रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि उनका यही कहना है कि सिंध हुकूमत का हमारा कोशिश यही है कि जो कराची के शहरी हैं उनको आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा की ज़ेर निगरानी तहसील ऑफिस राजा बाजार में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। कचहरी में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, सदर, सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन का इस मौका पर कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हर माह के पहले दफ्तरी दिन को डिप्टी कमिश्नर का रेवेन्यू अमला एक छत के नीचे शहरियों की खिदमत के लिए मौजूद हैं, मसाइल का मौका पर हल यकीन बनाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने हिदायत की कि खुली कचहरी के साइलिन से हुस्न सलूक और उनके मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। रेवेन्यू सर्विसेज की फराहमी में गैर ज़रूरी तवालत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गफलत के मुर्तकिब अमले के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कचहरी में साइलिन की तरफ से इनकम सर्टिफिकेट, फर्द के इजरा, रजिस्ट्रेशन, इंतकाल, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का इजरा और दुरुस्तगी नाम समेत दीगर रेवेन्यू सर्विसेज से मुतल्लिक तकरीबन 124 शिकायत की जानिब तवज्जो मबसूल करवाई गई है। रेवेन्यू समेत तमाम तर महकमे SSOPs बनाएंगे। अवामी शिकायत को फौरी इजाला मुमकिन हो सके। अवामी सर्विसेज की डिलीवरी को आसान और शफाफ बनाकर साइलिन को रिलीफ फराहम किया जा सकेगा। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, हमारा मकसद अवामुन्नास को सरकारी दफ्तरों के गैर ज़रूरी चक्रों से बचाना है। तमाम मुतल्लिका अफसरान अपने फ़राइज़ पेशावराना जिम्मेदारी से सरअंजाम देते हुए शहरियों को हर मुमकिन रहनुमाई भी फराहम करें। सादिकाबाद में चंद रोज कबल नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज़ अब्दुल गफ्फार मेहर और दीगर सहाफ़ियों को हब्से बेजा में रख कर तशद्दुद का मामला सामने आया है। मुल्जिमान गिरफ्तार न करने पर सहाफ़ी बरादरी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मिरानी से। जी अली मिरानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सादिकाबाद में सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद का मामला, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफ्फार महार और दीगर सहाफ़ियों को जो है चंद रोज़ कबल कवरेज के लिए बुलवाया गया और उन पर जो है तशद्दुद किया गया और अगवा करने की कोशिश की गई। मज़ीद जो है आज सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद हमारे साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम सादिकाबाद के सदर जो है अमन नवाज़ कलवड़ हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर। देखिए, ये जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक है। सबसे पहले तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं हुकूमत वक्त और यहाँ की इंतज़ामिया जो ज़िली इंतज़ामिया है और DPO रहीमर ख़ान है उससे मैं मुतालबा करता हूँ कि 3 रोज़ जो है वो गुज़र चुके हैं लेकिन मुल्ज़मान जो हैं वो ताहाल गिरफ़्तार नहीं हुए, कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। तो मैं मुतालबा करता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रहीमर ख़ान से कि वो फौरी जो है वो एक्शन लें और हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उन पर जो तशद्दुद किया गया है उनको हब्से बेजा में रखा गया है, उनके मुल्ज़मान को जो है फौरी गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। जी बिल्कुल, सदर साहब का कहना था जो सहाफ़ियों पर जो है तशद्दुद का मामला है ये जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। मज़ीद जो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल गफ्फार मार साहब, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कोहिनूर TV रहीमयार खान हूँ। तो तकरीबन 3 रोज़ कबल मुझे कवरेज के बहाने बुलाया गया और वहाँ से अगवा करके हमें हब्से बेजा में रखा गया, तशद्दुद किया गया, तो हमें मारने की कोशिश की गई। तो मैं DPO रहीमयार खान से मुतालबा करता हूँ कि हमारा मुकदमा तो दर्ज हो चुका है लेकिन सर्कल सादिकाबाद पुलिस ने अभी तक मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं किए। 48 घंटे का टाइम लिया था लेकिन अभी तक मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए। हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि सदर साहब का और जो सीनियर साफ़ी हैं अब्दुल गफ्फार मार साहब का, पुलिस जो है ASP शाहजेब चाचा ने 48 घंटे का टाइम दिया था। ताहाल जो है वो मुकदमा तो दर्ज हो चुका है लेकिन जो मुल्ज़मान जो है कानून की गिरफ्त में नहीं है। जी। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली नासिर ने आज बादशाही मस्जिद का दौरा किया और शायर मशरिक़ हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इक़बाल के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। इस मौका पर सेक्रेटरी औक़ाफ़ सैयद ताहिर रज़ा बुखारी और दीगर औक़ाफ़ अफसरान इनके हमरा थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान शाह निगरान वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद अज़फ़र अली नासिर के साथ बादशाही मस्जिद में मौजूद हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात
ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں صوبائی نگران وزیر برائے اوقاف سید اظفر علی ناصر صاحب کے ساتھ. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کل جو ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں تمام پنجاب کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں اوقاف کے انہوں نے حصہ لیا تھا، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی جانب سے محکمہ اوقاف میں بہتری کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جو پشاور میں سانحہ ہوا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور ہماری حکومت جو ہے وہ اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے. دوسرا، آپ کے سوال کے حوالے سے نئی کیئر ٹیکنگ گورنمنٹ ہے، پرجوش اور شاندار قیادت ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ جناب سید محسن رضا نقوی صاحب کی بہت کلیئر اور اسٹریٹ انسٹرکشنز ہیں. ان کی ہدایت کو فالو کر رکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چھوٹے سے اسپین کے اندر ہم نے کام کرنے ہیں اس کے اندر ہم سب لوگوں کی سپیڈ بڑی تیز ہونا بہت ضروری ہے. سب سے زیادہ انحصار اس بات کے علاوہ کہ ہمارا بیسک فنکشن فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانا ہے. ہم نے محکمے کے اندر بھی بہترین اور بہت شاندار کام کرنے ہیں. کرپشن شوڈ بی زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن. جی یہ ہمارا موٹو ہے، ہر محکمے کا، ہر وزیر کا ایک ہی موٹو ہے، زیرو ٹالرنس ٹو کرپشن. میرٹ کے بغیر کام نہیں ہوگا. جو سلسلے چلتے آئے ہیں وہ سلسلے ایسے نہیں چلیں گے. کل کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر ہمارے سارے زونل ہیڈز موجود تھے. آئی واز ویری کلیئر ان مائی ٹاکس ود دیم کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی کارکردگیاں جو ہیں وہ پریزنٹ کریں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، واٹس گوئنگ آن، ہم اس کے اندر کیسے بہتری لا سکتے ہیں. اور میں نے ان کو خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ ایمفسائز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکومت پنجاب کی طرف اپنے بجٹ کو انہینس کرنے کے لیے مت دیکھیں، بلکہ آپ اپنے فائنینسز کی فائنینشلی خود سیلف جنریشن کریں اور اپنی آمدنی کو اوقاف کے محکمے میں بڑھائیں تاکہ آپ کے اخراجات جو ہیں وہ خود نکلیں. سادگی کا وقت ہے، ویسے ہی جو پوری قوم ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بڑا فائنینشلی بڑا سخت کرنچ ہے، اکانومی ہماری کس طرف جا چکی ہے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے، آپ کو معلوم ہے، اپنی تمام مراج چھوڑ دیں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور تمام کابینہ نے اپنی تمام تنخواہیں اور تمام جو بھی معاملات تھے ہاؤسنگ وغیرہ ہم نے سب کو چھوڑا. یہ کام کرنے کا وقت ہے، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، اور میرٹ کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور میں نے یہ ہمارے ماشاءاللہ سیکریٹری صاحب ہیں، نئے تعینات ہوئے ہیں، ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، یہ بھی ایک ماشاءاللہ بہت قابل افسر ہیں. گراس روٹ لیول سے لے کے ماشاءاللہ سیکریٹری لیول تک ان کو محکمے سے وابستہ رہیں. ان کو اس محکمے کے تمام معاملات معلوم ہیں. میں ان کے ساتھ مکمل ڈسکشنز میں ہوں، اور ایک کام جو میں اس محکمے میں بہترین ریفارمز کے لیے کرنا چاہتا ہوں، یا جس کا کم از کم سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہوں، وہ اس چھوٹی مدت میں تو پورا نہ ہو سکے گا، مگر کم از کم میں اس کی بنیاد ڈال دینا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کمپیوٹرائزیشن. ہم ریکارڈ کو مینول ریکارڈز کو سارا کمپیوٹرائز کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ایوری تھنگ ٹو بی IT بیسڈ in such a way that everything is transparent, straight and up to the mark, and everything should be corruption free. باقی جو ہے یہ بخاری صاحب جو ہیں، ڈائریکٹر LDA سبطین رضا قریشی کی جانب سے پینوراما لاہور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صدر کے امیدوار چودھری اشتیاق خان، امیدوار نائب صدر ربیہ باجوہ، سیکرٹری کے امیدوار قادر بخش چاہل اور مظہر اقبال نول ایڈوکیٹ شریک ہوئے. مقررین کا کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کے منتظمین سبطین شاہ صاحب، اپنا عمار لنگا صاحب، مظہر نول صاحب اور نوید بھائی، یہ LDA کے وہ دوست ہیں جو پروفیشنل دوست ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے وکالت کی ہے، ان لوگوں نے اپنی عزت پائی ہے. یہ LDA کا کام بہترین انداز میں کریں. آج انہوں نے اپنے تمام دوست یہاں پہ اپنے آفس میں اکٹھا کیا ان کو، اور ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا. یہ ایک خوبصورت گیدرنگ ہے. ہماری
डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का ये एक बेहतरीन तरीका है कि हम हर साल अपनी कैबिनेट को इलेक्ट करते हैं और वो कैबिनेट जो है वो लॉयर्स की वेलफेयर के लिए काम करती है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए काम करती है और इसमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करते हैं। मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूं जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और आप यहाँ पे हमारा इंटरव्यू किया आपने, और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये असल में इस मुल्क की तकदीर को बदलने का ये हमेशा वकला ने अपना रोल प्ले किया है और इस वकील का, इस मुल्क का ख्वाब एक वकील ने देखा, इसकी तामीर एक वकील ने की, इसका आइन एक वकील ने दिया, इसको आगे खुशहाली की राह पे गामजन करने के लिए आइन की पासदारी जब की जाएगी, जब रूल ऑफ लॉ होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आज एलडी की अनाउंसमेंट सप्तान रज़ा कुरैशी साहब ने, मज़र नौल साहब ने रखी है। हम तमाम उम्मीदवारों को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया, मदऊ किया, हमें अनाउंस किया है। मैं सेक्रेटरी हाई कोर्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। मेरी अवलिन तरजीह वकला के वेलफेयर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट को ना सिर्फ बढ़ाना, उसके लिए काम करना है। आज की तकरीब के हवाले से तमाम दोस्त यहाँ पर आए हैं, उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया है। बहुत सोच विचार के बाद ये अनाउंसमेंट जो है वो सारे दोस्तों ने जिन्होंने रखी है। हमारा प्रीवियस कंडक्ट इस बार के अंदर हमारे प्रोफेशन के इतने अरसे से बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर जो है, इन्होंने कंसिडर करते हुए हमें जो है यहाँ पर आज बुलाया हुआ है। रूल ऑफ लॉ की बात किए बगैर मैं समझता हूँ कि कोई वकील की कोई भी बात कंप्लीट नहीं हो सकती है। वकला ने हमेशा इस मुल्क के अंदर सिर्फ तरजीह नहीं दी, बल्कि रूल ऑफ लॉ के लिए वो काम किया है जो आज तक किसी और ने नहीं किया और ना ही कर सकता है, ये मैं समझता हूँ। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारे कायद आज़म इस मुल्क की बुनियाद रखने वाले, इस मुल्क को बनाने में जिस तरह उनका किरदार, हम उनसे हर लम्हा एक इंस्पिरेशन लेते हैं और उसी को फॉलो करते हुए जो है वो हम इसको आगे लेके चलेंगे। केयर न्यूज़ का आपका बहुत शुक्रिया और अगेन तमाम मुंतज़मीन का बहुत शुक्रिया। ये हमने हर साल की तरह एलडीए के जो लॉ ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक अपना पैनल अनाउंस किया है, जिसमें प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कैंडिडेट्स हैं। और उसके लिए इश्तियाक खान साहब को हमने एज अ प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अनाउंस किया है, कादिर बख्श को एज अ सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार अनाउंस किया है। तो ये एक रिवायत हमने कायम रखी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डॉक्टर इरशाद अहमद ने सेक्रेटरी बल्दियात का चार्ज संभाल लिया है। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ग्रेड 20 PMS सर्विस के सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। वो इससे कबल सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी औकाफ और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन पंजाब तैनात रह चुके हैं। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद कमिश्नर डेरा गाजी खान, मुल्तान और सरगोदा के तौर पर इन इलाकों की तामीर और तरक्की में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर इरशाद अहमद 2 बार डिप्टी कमिश्नर चनियोर, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा के अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद ने 2014 में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिसाली काम किए, जिस पर आलमी सतह पर इनकी पजीराई की गई। डॉक्टर इरशाद अहमद ने बतौर सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब भर के DHQ और तहसील अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए। बतौर सेक्रेटरी औकाफ पंजाब भर में रेवेन्यू कलेक्शन में कई गुना इजाफा हुआ। वसी इंतजामी तजुर्बे के माहिर सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने चार्ज संभालते ही अमले को यकसुई से अवामी खिदमत करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि अवाम की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए महकमा बल्दियात का किरदार बहुत अहम है। डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि बतौर सेक्रेटरी बल्दियात मौसर मॉनिटरिंग के जरिए म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाना और अव्वलीन तरजीह शामिल है। PSL का बुखार सर चढ़कर रायवंड क्रिकेट बोर्ड में बोलने लगा। PSL के तर्ज का टूर्नामेंट RSL की ड्राफ्टिंग की सरमनी निजी शादी हाल में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी हमेश गुल बाजोड़ होटल के ऑनर और सदर नियाज खान, चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मुबशर इकबाल थे। RSL में 6 फ्रेंचाइजर ने हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ खिलाड़ियों का चुनाव किया और ट्रॉफी की रोनुमाई की, जिसमें ऑनर्स ने मुख्तलिफ बल्लेबाजों और बॉलर्स का इंतखाब करके अपनी अपनी टीम मुकम्मल की। तमाम टीमों में से बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को 1 लाख, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 50,000 बतौर इनाम दिया जाएगा। चीफ ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट मुबशर इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा,
صوبائی دارالحکومت لاہور میں دھوپ موسم کو خوشگوار بنا رہی ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان نہیں ہے۔ مزید اس حوالے سے آگاہ کریں گے لاہور سے ہمارے نمائندے جنید اشرف۔ جی جنید، لاہور کا موسم کیسا ہے؟ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور کی بات کریں تو لاہور میں جو ہے آج سورج کا راج برقرار ہے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ بارشوں کے بعد جو ہے لاہور بھر کا موسم جو ہے وہ کھل گیا ہے، اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ لاہور کے موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے بتاتا چلوں تو لاہور کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 171 تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بتاتا چلوں تو سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 203 تک ڈی ایچ اے فیز 8 میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کافی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ کافی حد تک تجاوز کر گیا تھا، جبکہ آج دن بھر جو ہے سورج اور بادلوں کی ہلکی پھلکی جو ہے آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جزوی طور پر بہت کم جو ہے وہ بادل ہمیں نظر آ رہے ہیں آسمان پر، اور دوسری جانب اگر شہر کی درجہ حرارت کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو شہر کا کم سے کم درجہ حرارت آج 7 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ظاہر کیا گیا۔ سیکٹری لائف سٹاک پنجاب مسعود انور نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ چارج سنبھالتے ہی سیکٹری لائف سٹاک کی زیر صدارت محکمانہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ سیکٹری لائف سٹاک نے محکمانہ پالیسی، منصوبہ جات اور ویٹرنری سروسز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر سیکٹری لائف سٹاک کا کہنا تھا کہ مقامی سطح پر ویکسین پروڈکشن میں خود کفالت کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ 9211 سسٹم اور آئی ٹی اصلاحات بارے ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جائے گا۔ محکمانہ امور کا جائزہ لینے کے لیے جلد ہی تمام دفاتر کا دورہ کروں گا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی سیکرٹری سمیت ڈائریکٹر جنرلز کی بھی شرکت۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔